explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1, and the name of the chapter is Numbers up to 20, right? So इस chapter में we are going to learn about the numbers but only up to 20, right? So let's begin. So सबसे पहले हम देख सकते हैं वी हैव द टॉपिक नंबर्स इन रियल लाइफ, राइट? तो देखते हैं कि ये रियल लाइफ से नंबर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. लुक एट द पिक्चर. सो हमें यहाँ पर पिक्चर को देखने के लिए बोला गया है, राइट? वी कैन सी दैट देयर इज अ टीचर. दिस इज बेसिकली अ पिक्चर ऑफ अ क्लास, राइट? जहाँ पर एक टीचर है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर हेयर, राइट? सो लेट्स सी कि ये पिक्चर से रिलेटेड हमसे क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं. करेक्ट? सो लेट्स फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द पिक्चर. कि पिक्चर में हम कितने स्टूडेंट्स देख सकते हैं. वी कैन सी 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So we can see that there are total 6 students in the picture, right? Then next question they are asking how many clocks. So कितनी clock है classroom में, right? We can see that there is only one clock. So let's write 1 over here. 1 clock. Next, how many tables? Tables कितनी है classroom में? Yes? So let's count them very quickly. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So again we are going to write 6 over here. 6 tables. Then how many boys? Boys कितने हैं class में? Let's count. So it is 1, 2 and 3, right? So 3 boys are there. So we are going to write 3 over here. Next, we have the question that is how many girls? Girls कितनी है class में? So it is 1, 2 and 3, right? So again we are going to write 3 over here. Then how many map? कितने map है classroom में? So we can see that there is only one map in the classroom. So we are going to write 1, right? Then they are asking how many books. So यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी books हैं. Let's count these books. First of all on the tables 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, right? 8 and 9, 10, 11, 12 and 13, right? So we saw total 13 books in the classroom. So let's write 13 over here, right? So we saw that हमारी लाइफ में हर चीज नंबर से जुड़ी है, right? This is how we connected our life, our real life with the numbers. Correct? We have the topic which is making 10. So, how can we make this 10? Right? 10 आखिर कैसे बनाया जाता है? Let's see. So, 10 is the first 2-digit number and is written as 10. कि 10 जो है वो पहला 2 डिजिट वाला नंबर होता है, राइट? और उसे हम 10 के फॉर्म में लिखते हैं, राइट? सो वी ऑल नो दैट वी बिगिन द काउंटिंग विद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and after that we write 10, राइट? तो सब 10 के ऊपर हमने देखा कि जितनी भी डिजिट्स हैं वो सभी सिंगल डिजिट्स हैं. तो इसीलिए कह रहे हैं कि 10 जो है वो पहला 2 डिजिट नंबर है, राइट?
we use 1 and 0 to represent 10. कि हम 1 और 0 को यूज करते हैं ताकि हम 10 को रिप्रेजेंट कर सके, राइट. वी रिप्रेजेंट इट्स क्वांटिटी एज, कि हम 10 की क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर 10 स्टार्स बनाए हैं, राइट. सज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, right. Now T stands for tens and O stands for ones. हमने यहाँ पर देखा कि ये ones और tens दो चीजें लिखी हुई हैं और उसके नीचे हमने 1 और 10 को 1 और 0 को प्लेस किया है, राइट. सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो T है ये स्टैंड करता है टेंस के लिए और ये जो O है ये स्टैंड करता है वंस के लिए, राइट. नाउ नेक्स्ट ऐसे बिल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 11 to 20. तो अभी हमें बता रहे हैं कि हमें नंबर्स बनाने हैं 11 से लेकर 20 तक, राइट. तो हाउ दे आर मेड, लेट्स सी. सो दे आर सेइंग दैट 110 and 11 makes 11, राइट. कि अगर हम एक 10 और एक 1 को ऐड ऑन करेंगे तब हमें 1 and 1 11 मिलेगा, राइट. सो दैट मीन्स जब भी हमें 10 के आगे के नंबर्स बनाने होंगे तो हम टेंस में उस नंबर को ऐड करते जाएंगे एंड वील गेट द नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, राइट. सो we can see same thing is done over here with the next ones. So as we can see, same process we are going to follow up with the rest of the digits also. So just like 110 and 2 ones make 12, right. 110 and 3 ones make 13. 110 and 4 ones make 14. 110 and 5 ones make 15, right. 110 and 6 ones make 16. 110 and 7 ones make 17. 110 and 8 ones make 18. Then moving ahead, 110 and 9 ones make 19. 110 and 110 or 10 ones make 20, right. Moving ahead, so here we have our very first exercise of the chapter. Let's begin with the first question, which says, write the number names of the following numbers. तो हमें number के number names लिखने हैं, right? So how we do this? Suppose the example is 5. So we are going to write F-I-V-E, 5. Then let's go with the last one, which is 19. So it is written as 9, right? Next, moving up to the question 2, identify the number as tens and ones. कि हमें numbers को identify करना है कि tens कौन सा होगा और ones कौन सा होगा, right? So how we do this? Suppose there is a single number which is 2. तो जो सिंगल डिजिट्स नंबर होते हैं ऑब्वियसली हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 होगा 1 साइड पे, राइट. सो वी विल राइट 2 ओवर हियर. देन लेट्स गो विद द लास्ट वन विच इज 20. सो 20 में वी नो कि वंस पर क्या है, इट इज 0, राइट. एंड ऑन टेंस प्लेस वी हैव 2, राइट. सो 2 tens plus 0 ones is equal to 20. Moving ahead,
Next topic that we have is numbers before, after and between. तो अब बात करेंगे हम numbers की after, before and between, right? So let's see how we do this. So यहाँ पर हमें 3 statements दी गई हैं. Let's see what they are saying. She is Astha. Okay, this is the girl Astha, right? He is Mayank. She is Sakshi, right? So let's see what they are explaining. Astha is standing before Mayank. कि आस्था जो है वो मयंक से पहले खड़ी है. मयंक is standing between आस्था and साक्षी. कि मयंक जो है वो आस्था और साक्षी के बीच में खड़ा है. साक्षी is standing after मयंक. कि साक्षी जो है वो मयंक के बाद खड़ी है, राइट? सो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें ये पता चला कि बिफोर का मतलब होता है पहले, राइट? बिफोर का मतलब होता है पहले. बिटवीन का मतलब होता है बीच में. एंड आफ्टर का मतलब होता है बाद में, राइट? सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट दे आर टेलिंग अस. So use the given number strip and find numbers before, after and between. Right? तो जल्दी से इन given numbers को नंबर स्ट्रिप को यूज करते हैं और नंबर्स का पता लगाते हैं कि कौन से नंबर्स किस नंबर के पहले, बाद में या फिर बीच में प्लेस किए जाते हैं, राइट? सो वी कैन से कि यहाँ पर इन्होंने 10 को एग्जाम्पल लेके हमें बताया है. सो वी कैन सी 10 इज बिटवीन 9 एंड 11. कि 10 जो है वो 9 और 11 के बीच में है, राइट? वी कैन सी कि 9 और 11 यहाँ पर है और उसके बीच में 10 है. तो हेंस वी कैन से कि 10 जो है वो 9 और 11 के बीच में आता है. देन अब अगर हम 9 की बात करें तो 9 इज बिफोर 10. कि 9 जो है वो 10 से पहले है. बिफोर यानी पहले, राइट? सो हेंस वी कैन से दैट 9 कम्स बिफोर 10, राइट? सेम गोज विद द 11. अगर हम 11 की बात करें तो 11 इज आफ्टर 10. कि जो ये 11 है ये 10 के बाद में आता है. तो हेंस वी कैन से दैट 11 कम्स आफ्टर 10. Right? Moving ahead to the exercise, right? So, let's begin with the first question. It says, fill in the blanks with the correct number. तो ये fill-ups दिए गए हैं हमें, जिसमें हमें correct number को भरना है. Let's see how we can do it. So, it says, dash comes just before 16, right? So, जल्दी से इसी number strip को use करते हैं to find out that what comes before 16. तो वी कैन सी 16 यहाँ पर दिया गया है, राइट? बिफोर का मतलब होता है पहले. तो हमें बिफोर 16 यानी 16 से पहले वाला नंबर देखना है जो कि है 15, राइट? सो वी आर गोइंग टू राइट 15 ओवर हियर. दैट 15 कम्स जस्ट बिफोर 16, राइट? नेक्स्ट वी हैव डैश कम्स जस्ट बिफोर 19. सो 19 वी कैन सी स्ट्रिप में यहाँ दिया हुआ है. एंड बिफोर यानी पहले. 19 के पहले वाला डिजिट हमें देखना है which is 18. So the answer is 18. That 18 comes just before 19. Next, 10 comes just after. कि अब ये पूछ रहे हैं कि 10 किसके बाद आता है, राइट? तो 10 जो है वो किसके बाद आता है? आफ्टर यानी, राइट? तो सो दे आर आस्किंग 10 कम्स जस्ट आफ्टर. कि 10 जो है वो किसके बाद आता है? तो वी कैन से दैट 9 के बाद आता है 10. सो द आंसर बिकम्स 9 ओवर हियर, करेक्ट? देन नेक्स्ट वन, डैश कम्स इन बिटवीन 18 एंड 20. तो अब कौन सा डिजिट है जो 18 और 20 के बीच में आता है? सो वी कैन सी कि 18 और 20 यहाँ पर मेंशन है और उनके बीच में है 19.
So hence we can say that 19 comes between 18 and 20. Then moving up to the second question, color this number strip as instructed. तो हमें इस नंबर स्ट्रिप को कलर करना है जैसे हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया गया है, राइट? सो लेट्स सी हाउ दे आर सेइंग. दे से कलर द नंबर इन रेड दैट कम्स बिफोर 15. तो जो नंबर 15 से पहले आता है, बिफोर का मतलब पहले, राइट? तो जो नंबर 15 से पहले आता है उसको हमें रेड कलर करना है. सो लेट्स बिगिन डूइंग रेड कलर इन द नंबर विच इज बिफोर 15. 15 के पहले हमने देखा 14. सो लेट्स कलर 14 नंबर, राइट? क्लियर? नेक्स्ट, color the number in yellow that comes after 19. तो अब after 19 यानी 19 के बाद, after का मतलब होता है बाद में, राइट? तो 19 के बाद हम देख सकते हैं कौन सा नंबर है, 20. So let's color it yellow. Next, color the number green that comes between 9 and 11. तो अब हमें उस नंबर को ग्रीन कलर करना है जो कि 9 और 11 के बीच में आता है. सो व्हाट इज द नंबर? वी कैन सी 9 and 10 written, 9 and 11 written here, और 9 और 11 के बीच में कौन सा नंबर है? इट इज 10. So we are going to color. Next topic that we have is ordering numbers. दो हम numbers को कैसे order में रख सकते हैं, right? What is the order of these numbers, right? तो now they are saying, so there are two orders जिसमें हम numbers को arrange कर सकते हैं, right? The one is increasing order and the decreasing order, right? So अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है ये जानते हैं. तो सबसे पहले है इंक्रीजिंग ऑर्डर. व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर? इन दिस ऑर्डर्स नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, राइट? तो ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर में जो छोटा नंबर होता है वो सबसे पहले आता है एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जो बड़ा नंबर होता है, वो सबसे बाद में आता है, राइट? हम एक सीरीज फॉलो करते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर तक की, राइट? सो जैसे कि यहाँ पर कहा दिया गया है 7, 15 एंड 80. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 7 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है. 7 is the smallest, right? And moving up to the 18, so we can see 18 is the greatest. 18 सबसे बड़ा नंबर है, right? So जब हम smallest to greater की तरफ बढ़ते हैं तो वो कहलाता है increasing order, right? Next we have decreasing order. अब ये decreasing order क्या है? In this order numbers are arranged from the greatest to the smallest. कि इस ऑर्डर में जो नंबर्स है वो अरेंज किए जाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, राइट? सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं 18, 15 एंड 7. सो सेम पैटर्न इज देयर, राइट? बट व्हाट वी हैव डन इज द ग्रेटर वन इज ऑन द is in the beginning and the smallest number is in the end, right? Just like 18 is the greatest one and 7 is the smallest one, right? So हम कह सकते हैं कि increasing और decreasing order एक दूसरे के opposites होते हैं. Increasing order में हम करते हैं smaller to greater, right? और अगर हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर की तो उसमें होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, राइट? I hope I made you clear with the increasing and the decreasing order, right? So here we have a point that we need to keep in our mind. So let's see what is it. So they say remember that ascend means to move upward and descend means to move downward, right? तो ये क्या कह रहे हैं कि जो वर्ड होता है ascend,
असेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना, राइट? एंड जो वर्ड होता है डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना, राइट? सो ascend को we can say ascend is just like increasing order and descend is just like the decreasing order. We have the exercise. Let's have a look at the first question. Arrange the following numbers from the smallest to the greatest. तो अब जल्दी से इन सभी नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलर से ग्रेटर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट? So the numbers in the first question are 13, 21, 10 and 8, right? तो सबसे छोटा नंबर हम यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं? It is 8. Why have we found the smaller number over here? Because we are talking about the increasing order. Increasing order का जो order होता है, it is from smaller to the greater number, right? तो हम सबसे पहले सबसे small number ढूंढेंगे, which is 8. Right? So let's write 8 first of all. Then 8 से बड़ा number कौन सा है? It is 10, right? Because we move to the greater one. So we have 10 over here. 13. So let's move to the next one, which is 13. And the last is 21. So hence we can say that we moved from smallest to the greatest number in this series, right? Next, question number 2. Arrange the following numbers from the greatest to the smallest. तो अब जल्दी से इन numbers को arrange करते हैं greatest से smallest में, यानी कि अब हमें इन numbers को descending orders में arrange करना है, right? So the numbers are 14, 17, 19 and 8. तो अब हम सबसे पहले कौन सा number ढूंढेंगे? The greatest one, right? So greatest number कौन सा है इनमें? 19. So we'll write 19 over here. Then 19 से छोटा number कौन सा है? It is 17, right? Because why we have chosen 17? Because we are moving from the greater to the smaller number, right? 17 के बाद we can see 14 is the one, and then at the end it is 8, right? So hence we arrange these numbers from the greatest to the smallest, that means descending order. Moving ahead, we have the next topic, which is comparing numbers. So अब हम numbers को कैसे compare करेंगे वो सीखते हैं, right? So look at the number strip given below. तो यहाँ पर हमें एक number strip दी गई है नीचे, इसे देखते हैं. Observe the number strip to find that the numbers to the left of a number are smaller than the number to the right. Right? कि हम जब इस नंबर स्ट्रिप को ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो नंबर्स लेफ्ट साइड पे आते जा रहे हैं वो एक्चुअल में छोटे हैं उन नंबर से जो कि राइट साइड पर लिखे हैं. करेक्ट? सो वी से दैट 0 हमारे सबसे लेफ्ट साइड पे है और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी 0 से बड़े हैं, राइट? सो वी कैन से कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, राइट? छोटा देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा, राइट? दे आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट? सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on till 20 we have written the strip, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 ये जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो नंबर्स और ज्यादा बड़े होते जाएंगे. When two numbers are compared on the number strip, the number further from 0 is greater than the other number. कि अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं एक नंबर स्ट्रिप पे तो जो नंबर्स हैं 0 से लेकर के वो ग्रेटर होते हैं. जितने भी नंबर्स हैं नंबर स्ट्रिप पर हम देखेंगे कि जो नंबर हैं 0 के बाद में वो सभी 0 से ग्रेटर होते हैं, यानी 0 से तो बड़े ही होते हैं, राइट? सो नाउ दे से लेट अस कंपेयर नंबर्स 10 and 16. तो अब हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को 0 से
10 से लेकर, सो लेट अस कंपेयर नंबर्स 10 एंड 16। तो अब जल्दी से 10 और 16 नंबर को कंपेयर करते हैं, राइट? तो हमें क्या पता लगाना है कि वो नंबर 0 से कितनी दूर है, राइट? जो नंबर 0 से ज्यादा दूर होगा वो उससे ज्यादा बड़ा होगा, राइट? दूसरे नंबर से ज्यादा बड़ा होगा। सो वी हैव 10 ओवर हियर एंड 16 ओवर हियर, सो वी कैन से 10 जो है वो 0 के थोड़ा पास है, राइट? एंड ऑन द सेम लाइन 16 जो है वो 0 से दूर है, राइट? एज कंपेयर टू 10, करेक्ट? तो इसीलिए hence 16 is greater than 10, also 10 is smaller than 16। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो 16 है वो 10 से ज्यादा बड़ा है, राइट? और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि 10 जो है वो एक स्मॉलर डिजिट है एज कंपेयर टू द 16, राइट? नेक्स्ट वी हैव some points to remember. Says a 2-digit number is greater than a 1-digit number। कि जब भी हम बात करेंगे 2-digit नंबर्स की या फिर सिंगल डिजिट नंबर की, जब भी हम उन 2 डिजिट्स और सिंगल डिजिट नंबर के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर जो होता है वो छोटा होता है, जो 2 डिजिट नंबर होता है वो उससे बड़ा होता है, राइट? नाउ next we have the exercise. The question says circle the smaller number one has been done for you। कि हमें जो छोटा नंबर है, right, the one number which is smaller, उस पर हमें सर्कल करना है, right? So we can say कि एक हमारे लिए किया हुआ भी है 19 and 10। We know that 10 is the smaller one, so इसीलिए 10 पे हमने सर्कल किया है। Moving ahead, 18 and 15। तो अब 18 और 15 में से कौन सा वाला स्मॉलर नंबर है? We all know that it is 15, so we'll circle the 15 number. Next we have 7 and 13. Again we have the concept of the single and the double digit number, right? तो we saw कि single digit वाले नंबर छोटे होते हैं, that means 7 is the smaller one, right? Moving ahead, okay, circle the greater number। अब यहाँ पर हमें ग्रेटर नंबर को सर्कल करना है, राइट? तो बड़ा नंबर कौन सा है? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट हमारे लिए किया गया है विच इज 11 एंड 16, सो वी सी 16 इज द ग्रेटर वन, तो हमने 16 पे सर्कल किया हुआ है। मूविंग अहेड, 12 एंड 15, सो वी ऑल नो दैट 15 इज द ग्रेटर वन, तो हम 15 पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज 18 एंड 6, तो हम 18 पे सर्कल करेंगे as it is the greater one because it is the double digit number and 6 is a single digit number, right? Now let's see what we have studied in this chapter at a glance. So they say we use the words nothing, none, nil to talk about zero। कि अगर हमें जीरो की बात करनी है, अगर हमें जीरो को दर्शाना है तो हम जीरो के लिए नथिंग, नन या फिर निल जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमें पता है कि 10 जो है वो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है। नंबर्स कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एज 3, 7, 11, 16, 19 and from the greatest to the smallest as 19, 16, 11, 7 and 3। कि हमें पता है हम नंबर्स को 2 ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं, और दूसरा है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। I hope you all enjoyed it and you all got the concept really well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.